Students, good morning everyone. Today I am going to teach you our further topic of this chapter, the solar system, moons in our solar system. Okay students, so all of you look here. Moons are natural satellite of the planets. Moons जो होते हैं वो planets के natural satellites होते हैं. They are round in shape. The orbit are the orbit the planets. Okay, ये shape में round होते हैं and they orbit the planets. Okay students, the inner planet Mercury and Venus have no moons. Students, Mercury and Venus inner planets में आते हैं. Mercury, Venus, Earth and Mars. But there are no any moons of Mercury and Venus. Okay students, listen carefully. Mercury और Venus के moon नहीं होते. Is that clear? So what you get? Moons are natural satellite of the planet. It round in the shape and they orbit the planets. ये planets के orbit पे move करते हैं. So students, look here. There are next line. Large moon. The earth has one large moon. अर्थ है जिसका कि मून बहुत बड़ा है. इट इज़ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट. इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई एंड क्लोजर टू द अर्थ. ये जो रात में हमें जो मून दिखता है, इट इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ. ये अर्थ के बहुत ही करीब है, इसीलिए हमें बड़ा दिखता है. Okay students, and it is the natural satellite of the earth and each and every moons are the natural satellites of their planets. मैंने कहा ना कि हर planets के अपने moons होते हैं और इन्हीं moons को natural satellite कहा जाता है. And two planets which have no any moon, Mercury and Venus. Okay students, moon has two tiny moons. Mars has two tiny moons called Phobos and Deimos. Okay, there are two moons of Mars also, Phobos and Deimos. Next, the large outer planets have a huge system of moon. Their moons are very large in size. और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, मैंने कहा था ना कि हमारे जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, वो रॉक से फॉर्म होते हैं, लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. बट आउट ऑफ एक्सेप्ट दीज 4 planets, there are 4 planets also which is called also outer planets. Which one? That one, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These planets made from gas, इनको गैसी planets भी कहते हैं. Okay students, तो इनके भी अपने moons होते हैं and these moons are large in a shape. Their moons are very large in a shape. The four moon, Ganymede, Callisto, Io and Europa of planets Jupiter are large than some planets. ये कुछ ऐसे moons हैं like Ganymede, okay, Callisto, Io and Europa of planets Jupiter. Okay, ये जो moons हैं जो कि जुपिटर के हैं, ये इतने बड़े हैं कि किसी प्लैनेट से भी बड़े हैं. ओके, जो प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ में, सोलर सिस्टम में, द शेप ऑफ दीज मून्स विच Ganymede, Callisto, Io and Europa, in this shape it is more larger than planets also of other planets. ये अदर प्लैनेट से भी बहुत बड़े हैं. मतलब ये मून इतने बड़े हैं. जुपिटर तो अपने आप में सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो मून्स हैं ये भी इतने बड़े हैं, इससे बड़े तो मीन्स ये प्लैनेट से भी बड़े हैं. ओके, अदर प्लैनेट से भी लार्ज है शेप में. द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन. सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न? टाइटन. द मून्स ऑफ planet Uranus are made of ice and
रॉक। ओके, जो आपके यूरेनस के जो मून्स हैं वो किससे फॉर्म है? रॉक से और आइस से। ओके, एंड टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लैनेट नेपट्यून। सॉरी, ट्रिटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लैनेट नेपट्यून। नेपट्यून का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट मून कौन सा है? ट्रिटन। ओके, एंड सैटर्न का टाइटन, एंड it is made from ice and rock, and these are four moons which of Jupiter planet is largest, means more larger than other planets also, वो other planet से भी बड़े हैं, which is Ganymede, Callisto, Io and Europa. Okay students, now students let's talk about stars. हम लोग बहुत a lot of stars we see in the sky. Let's discuss about that. When you look at the night sky, you see many beautiful stars. Okay, there are different kinds of stars in the sky. बहुत सारे stars हमको sky पे दिखते हैं. It is different types. Okay, different kinds of star in the sky. Some are very big, कुछ बहुत बड़े होते हैं. A few stars are 100 to 200 times bigger than the sun. Okay students, कुछ stars तो इतने बड़े होते हैं कि वो 100 to 200 टाइम्स सन से भी बड़े होते हैं. मतलब सन का 100 से 200 गुने ज़्यादा बड़े होते हैं. इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं जो मुझे हम लोगों को बहुत ही टाइम ही दिखते हैं. ओके, इट्स लुक्स सो मच स्मॉल फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से बहुत हमें छोटे दिखते हैं. ओके, सम वेरी ओल्ड स्टार्स आर स्मॉलर देन द अर्थ. ओके, और कुछ इतने छोटे और पुराने होते हैं कि वो अर्थ से भी छोटे होते हैं. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार्स टू द अर्थ. सन एक ऐसा स्टार है जो कि अर्थ से क्लोज है. ओके, देयरफॉर इट लुक्स बिगर देन अदर स्टार. इसीलिए जो सन है हमें अदर स्टार से बिग दिखता है. स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशंस, सन इज अ स्टार made from a gas, and it is so much big and it is closer to the earth. ये अर्थ से क्लोज है, अर्थ के पास है, सोलर सिस्टम का मेन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये हमें बड़ा दिखता है. A lot of stars in the sky, but only sun which closest to the earth, so that it looks us a big. ओके, सन एक तारा है, एक स्टार है, और ये हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी के अर्थ के पास है. और जो स्टार्स हमें दिखते हैं वो तो सन से भी 100 to 200 टाइम बड़े होते हैं. ओके, और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो अर्थ से छोटे भी होते हैं. लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें अर्थ से सन क्यों बड़ा दिखता है, क्योंकि सन एक तारा है, क्योंकि वो सन हमारे अर्थ से काफ़ी क्लोज है, उसके पास है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सन एक तारा है, सन इज़ द स्टार, एंड जो आप मून पे लाइट देखते हैं, जो मून की रोशनी देखते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ओन लाइट ऑफ मून. मून इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द सन. ओके, मून की अपनी रोशनी नहीं होती, मून सन से रिफ्लेक्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, and asteroids are metallic object that orbit the sun. ओके स्टूडेंट्स, सो एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट. एक रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है विच ऑर्बिट द सन, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है. एंड मेटर्स आर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल इन स्पेस. मैटर्स जो होते हैं ये बहुत ही सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं और ये स्पेस में कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते हैं. दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स ऑल्सो. ये इनको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन. So thank you students for watching this video carefully.